الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارا سلسلہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، کیونکہ آج بھی ہم نے ایک نہیں 3 مقابلے کرنے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں تلاش ہے اس ٹیم کی جو ہماری باقی ٹیموں کے ساتھ کوارٹر فائنل کو جوائن کرے گی۔ آج 4 ٹیموں میں سے ہمیں ایک ٹیم تلاش کرنی ہے۔ مقابلے ہوں گے 3۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون آگے جاتا ہے۔ آئی ٹی مجلس، مدنی چینل والے، نعت خواں اور خصوصی اسلامی بھائی، 4 مجالس ہیں اور ایک ٹیم اس میں سے سلیکٹ ہوگی۔ آج 3 ہم سے جدا ہو جائیں گی۔ سلسلے کا آغاز کریں گے۔ یاد رہے کہ آج مقابلہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختصر رہے گا، کیونکہ ہم نے 3 مقابلے کرنے ہیں۔ ریپیٹ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سوال جواب ہوں گے۔ تو انشاءاللہ سلسلے کا آغاز کریں گے۔ آئیے سلسلے کے آغاز سے پہلے ہمارے محسن بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ جی محسن بھائی، کیا کہتے ہیں؟ آج آپ کی دکان سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ جی آج الحمدللہ عز و جل مکتبہ بھرا پڑا ہے اور انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو صحیح جواب دینے پر تحفے بھی دیے جائیں گے ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ اس بارے میں آپ کے تاثرات ہمیں مسلسل مل رہے ہیں۔ میں چند تاثرات انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ جی ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا ہے، مجھے مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے کہا ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ مجلس نعت خواں ایک قدم آگے بڑھ گئی۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں ذہنی آزمائش سلسلہ ہم بہت خوشی سے دیکھتے ہیں اور یہ ہمارا بہت پیارا سلسلہ ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے کہا بہت شوق سے سلسلہ دیکھا جاتا ہے، مگر جب لائٹ چلی جاتی ہے تو بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں ماشاء اللہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد رکھے، آمین۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں سلسلے کے بارے میں کہا کہ آج کا سلسلہ تو بہت مدینہ مدینہ تھا، جب عبدالحبیب بھائی ذکر مدینہ کرتے ہیں تو ایسا دل چاہتا ہے کہ بس روئے جائیں اور آنسو بہائے جائیں۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بہت زبردست، بہت خوب اور بہت ہی بہترین مدینہ مدینہ ہے، یہ سلسلہ دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ سلسلے کی واقعی ہمیں بہت زیادہ فیڈ بیک ملی۔ کئی ناظرین اپنے گھروں پہ اشکبار تھے ماشاءاللہ، جو ہم نے عشق مدینہ دیکھا اپنے خصوصی اسلامی بھائیوں کو، اور پھر آپ نے رزلٹ بھی دیکھا کہ کس طرح ماشاءاللہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹکٹس کی برسات ہوئی، اور ماشاءاللہ ان تینوں اسلامی بھائیوں بلکہ ان کے ساتھ جو چوتھے اسلامی بھائی اشارے کرتے ہیں ان کے لیے بھی عمرے کے ٹکٹ کی جو ہے وہ ہمیں خبر ملی۔ شروع کرتے ہیں سلسلہ، اور پہلا مقابلہ ہوگا مجلس مدنی چینل اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کے درمیان۔ دعوت دوں گا دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو تشریف لائیں اور ہم سلسلے کا آغاز کرتے ہیں ذہنی آزمائش۔ صلو علی الحبیب۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی۔ ہائے ہائے ہائے، ایک ایک مقابلہ جیت کر، جی ہاں یہ دونوں وہ ٹیمز ہیں جو ہمارے ساتھ آئی تھیں اور ایک مقابلہ جیتا اور آج ایک قدم آگے بڑھے ہیں۔ اگر انہوں نے کوارٹر فائنل تک پہنچنا ہے تو انہوں نے آج ایک نہیں 2 مقابلے جیتنے ہوں گے۔ میرا خیال ہے محسوس ہو رہا ہوگا وہ پہلا ہی مقابلہ جیت جاتے تو اچھا تھا۔ اب امتحان کڑا ہو گیا ہے، وہ پہلی جو پیچھے رہ گئے اب اس تک پہنچنے تک گویا 3 سٹیپس آگے جانے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ جو کوارٹر فائنل میں پہنچ جائیں گے پھر ان کے پاس صرف 3 قدم باقی ہوں گے فائنل جیتنے، اور انشاءاللہ وہ انعام جس کو ہم نے اعلان کیا ہے کہ فائنل جیتنے والے اسلامی بھائیوں کو 50 ہزار روپے کا مدنی چیک دیا جائے گا۔ ان کے پاس آپشن ہوگا، چاہے تو کتابیں لے لیں، چاہے تو مکتبۃ المدینہ سے سامان لے لیں۔ شاید مکتبے والے تو یہ دعا کرتے ہوں گے ہم سے ہی سامان لے لیں۔ بالکل، تاکہ کتابیں بھی بکیں اور علم بھی عام ہو لوگوں کے اندر۔ لیکن ہم نے آپشن دیا ہے کہ وہ چاہیں تو عمرے کا ٹکٹ لے لیں، لیکن دوسرے نمبر آنے والے جو فائنل میں پیچھے رہ جائیں گے انہیں 25 ہزار روپے کا مدنی چیک دیا جائے گا۔ کوارٹر فائنل میں پیچھے رہ جانے
کرنے والوں کو 6300 کا چیک دیا جائے گا. تو بہرحال ناظرین، تو آپ بھی ہمارے ساتھ تیار رہیے اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مقابلہ آگے کیسے چلتا ہے. نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں اور مدنی چینل کے اسلام بھائی موجود ہیں. آئیے میں اسکرین پر دکھائیے کہ آج کا سلسلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے. جی، سب سے پہلے مرحلہ ہوگا جواب دیجئے سوال کا. آج 10 نہیں، فقط 3 سوال ہوں گے. پھر شعر مکمل کیجئے، فقط 2 اشعار پوچھے جائیں گے. فقہی پہیلیوں میں ایک فقہی پہیلی ہوگی. سفر ہے مگر اکیلے میں فقط 6 سوال ہوں گے. ہر اسلامی بھائی نے ایک سوال دینا ہے. کوشش کیجئے گا غلطی نہ ہو. آئی ٹی مجلس والوں نے اب تک کے ذہنی آزمائش میں یہ کام کیا کہ ایک بھی غلطی نہیں کی تھی، مگر آج آئی ٹی والوں کا مقابلہ ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ. بڑی سمپتھیز ہیں ان کے ساتھ، بڑی دعائیں ہیں ان کے ساتھ، لیکن نام ہے ذہنی آزمائش سلسلے کا. یہاں وہی آگے جاتا ہے جو جواب صحیح دیتا ہے. باری ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی. پہلا سوال کریں گے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے. بتائیے گمان کسے کہتے ہیں؟ گمان کی تعریف بیان کیجئے. ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہو اسے گمان کہتے ہیں. ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہو اسے گمان کہتے ہیں، اس کو ظن بھی کہتے ہیں. جواب درست ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں نعت خواں اسلامی بھائیوں نے. دائیں طرف والے اسلامی بھائی نعت خوانوں کے ساتھ ہو جائیں، بائیں طرف والے مدنی چینل کے ساتھ ہو جائیں. ہمارے مدنی چینل کو اکیلا نہ چھوڑیں، مدنی چینل تو ہمیں سارے سلسلے دکھاتا ہے. جناب باری ہے مدنی چینل والوں کی. ایک بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکا یک مسکرائے. بتائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں مسکرائے تھے؟ کیونکہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح یہ عمل کیا تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی سنت کو ادا کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام پر وضو فرمایا، بعد فراغت میرے آقا مسکرائے. سیدنا عثمان غنی نے اسی ادا کو ادا کیا. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. جواب درست ہے. دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے صحابہ کن کن سنتوں پر عمل کرتے، ہر ادا تلاش کرتے اور اس پر عمل کرتے. اور آج ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو سنتوں سے دور زندگی گزار رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. باری ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فرمان کے مطابق بتائیں اگر پانچے دونوں ٹخنوں سے نیچے ہوں تو کس صورت میں حرام ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پانچے ٹخنوں سے نیچے بطور عجب و تکبر کے ہو تو یقیناً قطعاً حرام اور ممنوع و حرام ہے. تکبر کی وجہ سے اگر ٹخنوں سے نیچے پانچے لٹکائے جائیں تو یہ یقیناً قطعاً جو ہے ممنوع اور حرام ہے. جواب درست ہے. آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے پانچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رکھے جائیں. اور یہاں یہ شرعی مسئلہ بتاتا چلوں کہ اگر کسی کے پانچے چاہے وہ شلوار پہنی ہے، پینٹ پہنی ہے، اور اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو اب نماز کے لیے لوگ اسے فولڈ کرتے ہیں. اس کو فولڈ نہ کیجئے، کیونکہ نماز کے لیے اس طرح کپڑے موڑنا جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے. نماز پر اس پہ اثر پڑتا ہے. تو بہتر یہ کہ اب اس کو جیسی ہے وہ رہنے دیں. آئندہ کپڑے سلوائیں یا ان کپڑوں کو چھوٹا کروا لیں. تو یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں شرعی مسئلہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. اور تکبر کی وجہ سے اگر کوئی پانچے لٹکاتا ہے تو یہ ممنوع اور حرام. اب بات ہے، سوال ہے ہمارے مدنی چینل والوں سے. ان چیزوں میں سے 5 کے نام بتائیں جن میں بو ہو تو مسجد میں جانا جائز نہیں. کچا لہسن، کچی پیاز، کچا گوشت اور مولی، مٹی کا تیل اور بدبودار زخم. جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ اشیاء ہیں کہ اگر ان میں بو ہو تو انہیں لے جانا جائز نہیں ہے. ایسی اشیاء کو مسجد میں نہ لے جایا جائے. کچا لہسن، کچی پیاز، گندنا یہ لہسن سے ملتی جلتی ترکاری ہے. مولی، کچا گوشت، مٹی کا تیل، وہ دیا سلائی جس کے رگڑنے میں بو اڑتی ہو، بدبودار زخم اگر ہو کسی کے جسم پر، کوئی بدبودار دوا لگائی ہوئی ہو، مسجد میں اس حالت میں بالکل نہیں جانا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. سوال ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے، کس کس پانی سے وضو جائز ہے؟ می، ندی نالے، دریا، چشمے، سمندر، اولے، برف کے پانی سے اور کنویں کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے. نعتیں تو بڑی اونچی اونچی پڑھتے ہیں، جواب ڈرتے ڈرتے دے رہے ہیں. میرے بیچ اسلامی بھائیوں دیکھیں کیسی شاندار تحقیق ہے کہ میہ یعنی بارش کا پانی، ندی نالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں، برف اور اولے کے پانی سے وضو جائز ہے. جواب درست ہے. مدنی قافلے میں آپ میں سے شاید سبھی نے سفر کیا ہوگا.
آپ کو کھانا پکانے کا کبھی موقع ملا ہے؟ کس کو موقع ملا ہے؟ اچھا، تو اتنا سے ہی پکایا تھا یا پورا پکایا تھا؟ تو ہاتھ پورا اٹھائیں نا. اچھا، موقع ملا ہے آپ کو. یہ بتائیں کہ جنتی کیا جنت میں بھی کھانا پکائیں گے؟ جی نہیں، بلکہ جو جنتی جس چیز کی خواہش کریں گے وہ کھانا ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا. جنتی جنت میں جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا، وہاں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ، تیاری زبردست لگتی ہے، کوئی غلطی نہیں کی ہے. کس کو پیچھے چھوڑیں گے، کس کو آگے لے جائیں گے، یہ تو وقت بتائے گا. اسکور بورڈ تیار ہو رہا ہے. چلیں یہاں والوں سے سوال کر لیں، کون سی کتاب تحفے میں دیں گے حضور؟ انشاءاللہ ان کو امیر اہل سنت کی کتاب نیکی کی دعوت دیں گے. اس کتاب میں امیر اہل سنت مدظل العالی نے ایک بات ایسی لکھی ہے کہ وہ واقعی قابل غور ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہیں جہنم میں جانے سے بچایا جائے، نیکی کی دعوت دی جائے. اور اس میں نیکی کی دعوت دینے کے فضائل اور نہ دینے کے نقصانات بیان کیے گئے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ علمیہ کا رسالہ 40 فرامین مصطفیٰ بھی پیش کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو تحفے دے رہے ہیں بھائی. چلیں، سوال یہ ہے قرون ثلاثہ کون تھے؟ یہ بتائیے کہ قرون ثلاثہ کون تھے. ایسے اسلام ایسے پوچھے جو سلسلے میں شامل نہ ہوں تو زیادہ اچھا ہے. پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا. قرون ثلاثہ کون سے تھے؟ وہ 3 ادوار بتائیں گے یہ. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرون ثلاثہ سے 3 زمانے مراد ہیں. پہلا صحابہ کرام کا زمانہ، دوسرا تابعین کا زمانہ، اور تیسرا تبع تابعین کا زمانہ. سبحان اللہ. صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، یہ تینوں ادوار بہترین ادوار کہلائے. جواب درست ہے. چلیں ماشاءاللہ، تحفے بٹ رہے ہیں. چلتے اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 6 نمبر دونوں طرف حاصل کیے ہیں، غلطی کسی نے نہیں کی ہے. اب باری ہے شعر مکمل کیجئے. جی شعر مکمل کیجئے. میں 2 اشعار کچھ مجھے مشکل لگ رہے ہیں. چلیں بتائیے. وہ دنیا کی رنگینی میں کھویا رہا برباد ہوا. وہ دنیا کی رنگینی میں کھویا رہا برباد ہوا. جس نے عشق نبی سے دل کو خالی کیا ویران کیا. سبحان اللہ. جواب درست ہے. جی باری ہے ہمارے مدنی چینل والوں کی. بڑا پیارا شعر. خارے صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں. خارے صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں. اللہ. بڑا مشہور شعر ہے، کئی بار سنا ہوگا. سیکنڈز آپ کے ختم ہو گئے. اللہ. خارے صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں. وحشت دل نہ پھرا کوہ بیاباں ہم کو. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو. پھر دکھا وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو. اعلیٰ حضرت کے کلام کا شعر تھا. باری ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے. پردہ اس چہرائے انور سے اٹھا کر ایک بار. پردہ اس چہرائے انور سے اٹھا کر ایک بار. اپنا آئینہ بنا. اپنا آئینہ بنائے مہتاباں ہم کو. حافظ صاحب کو کہے نا کہ وہ کوئی بیچ سے لفظ سنا ہے تو وہ پیچھے سے طرز میں پڑھتے ہیں، پھر انہیں یاد آتا ہے. اب نعت خواہ بھی جو طرز میں آتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے شعر کیا. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب، باری ہے ہمارے مدنی چینل والوں کی. ایک غلطی کر چکے ہیں. پرخار راہ برہنا پا تشنا آب دور. کچھ مشکل شعر ہے.
پرخار راہ برہنا پا تشنا آب دور، تشنا آب دور. امام اہل سنت کا شعر ہے. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. اللہ، دوسرا شعر بھی نہیں سنا سکے ہیں. مولا پڑی ہے آفت جاں کا لے خبر. غلطی ہو گئی ہے. نعت خواں اسلامی بھائیوں کو آج نعت خواں ہونا لگتا ہے کام آ گیا ہے. چلیں جناب پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، اور اسکور بورڈ سے پہلے ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی شعر سنیں گے. سنائیں گے آپ انشاءاللہ؟ چلیں. اعلیٰ حضرت کا یہی کلام جس میں لے خبر آتا ہے، ایک شعر ہے. تحفہ کون سا دیں گے بھائی؟ انشاءاللہ ان کو امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام، اس میں امیر اہل سنت کے 12 رسائل ہیں. نماز، وضو، غسل، اور اس کے علاوہ سفر کی نماز، نماز جنازہ، یہاں تک کہ فاتحہ کا طریقہ، قبرستان جانے کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہے. اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کیے گئے سوالات اور اعلیٰ حضرت کے جوابات، اظہار الحق الجلی کے نام سے یہ کتاب ہے. اب شعر سنتے ہیں. اے شافع امم شہری جاہ لے خبر. کلام یہ ہے. اس کلام میں ایک شعر ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، دریا کا جوش. یہ شعر پورا سنائیے. واہ. چلے پیچھے سے وہ اسلام بھائی پہلے بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے، اگر تھوڑا آگے آ جائیں تو. جی ماشاء اللہ، جلدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دریا کا جوش نہ ہونا، بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو بچا للہ لے خبر. میں ڈوبا تو کہاں للہ لے خبر. میرے شاہ لے خبر. طرز میں سنا دے، جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. دریا کا جوش نہ ہونا، بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے. میرے شاہ لے خبر، خبر للہ لے خبر، میری للہ لے خبر. چلیں ذرا آپ دکھائیے ہمیں اسکور بورڈ، دیکھتے ہیں کہ مقابلہ اب کہاں تک پہنچا ہے. جی غلطی ہو گئی ہے ہمارے مدنی چینل والوں سے. 4 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. اب فقہی پہیلیاں، یہ بڑا مشکل سوال ہوتا ہے اور ہیں نمبر 4. آئیے شروع کرتے ہیں فقہی پہیلیاں. 4 نمبر کا سوال ہوگا. چاہیں تو اشارہ لے لیجئے گا، غلطی کریں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. امام نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس کے بعد کسی نے امام کی اقتدا کی اور اقتدا صحیح ہو گئی، اس کی کیا صورت ہے؟ امام صاحب موجود ہیں. سوال ایک دفعہ پھر. امام نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس کے بعد کسی نے امام کی اقتدا کی اور اقتدا صحیح ہو گئی، اس کی کیا صورت ہے؟ جی پتہ بھی، لیکن اگر وضاحت مزید ہو. اشارہ چاہیے تو 2 نمبر کم ہو جائیں گے. چاہیں تو آپ 2 نمبر کم کروا لیں. دے دیں، اشارہ دے دیں. اشارہ دے دیں، رسک نہیں لینا چاہتے. یہ کچھ سجدہ سہو کا معاملہ ہے. یعنی امام نے سجدہ سہو اس پر واجب تھا اور اس نے سلام پھیر دیا، سجدہ سہو نہ کیا، تو اب وہ دوبارہ اپنا سجدہ پورا کرنے کے لیے نماز پوری کرے گا. اب اس کے بعد کسی نے اس کی اقتدا کی تو اس اقتدا کو درست مانا جائے گا. جی بڑا انٹرسٹنگ کوسچن تھا. امام نے سجدہ سہو کرنا تھا، سجدہ سہو بھول گئے اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا کہ نماز جو منافی نماز ہو، نماز کے مخالف کوئی کام ہو. پھر یاد آیا، امام صاحب پھر سجدہ سہو میں چلے گئے اور اب کوئی مقتدی آیا اور اس نے نماز کو جوائن کیا تو اس کی اقتدا، اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی. یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا، خود امام صاحب ہے، پتہ نہیں کبھی ایسا کرتے نہیں کرتے. جواب بہرحال درست ہے.
2 नंबर हासिल किए हैं, गलती से बचने के लिए इशारा ले लिया। अब मदनी चैनल वालों के पास गुंजाइश है कि अगर ये पूरा सही जवाब दे दें तो 4 नंबर लेकर मुकाबले को कुछ क्लोज कर सकते हैं। वो कौन सी सूरत है कि एक शख्स कई नमाजियों के आगे से गुजरे लेकिन उसके बाद भी गुनाहगार नहीं होगा? अगर इमाम के सामने सुतरा हो तो किसके सामने से गुजरे? मुक्तदी। मुक्तदियों अच्छा, तो फिर क्या होगा? के सामने से गुजरे तो गुनाहगार क्यों नहीं होगा? क्योंकि इमाम का सुतरा मुक्तदियों का सुतरा है। जी हाँ, इमाम का सुतरा मुक्तदी का सुतरा होता है। जमात के आलम में अगर कोई शख्स नमाजियों के आगे से गुजर जाए तो गुनाहगार नहीं होगा। जवाब दुरुस्त है। जंप लगाई है हमारे मदनी चैनल वालों ने, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। मुकाबला फिर कुछ क्लोज आया है। आखिरी सेगमेंट में हम देखेंगे कि आज कौन एक कदम मजीद आगे जाता है। जी हाँ, अभी एक और मुकाबला भी इन्होंने जीतना है। अगर आज ये वाला जीत जाते हैं, कोई हमसे जुदा होंगे आज। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं फिकही पहेलियों के बाद हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी 12 नंबर है नातख्वां इस्लामी भाइयों के, 10 नंबर हैं मदनी चैनल वालों के। फर्क है 2 नंबर का। और अब हम शुरू करेंगे सफर, मगर वो करेंगे अकेले। सफर है मगर अकेले में एक इस्लामी भाई हम स्वैप करते हैं। एक इस्लामी भाई यहाँ तशरीफ ले आते हैं, दूसरे वहाँ चले जाते हैं। मशवरा करने की भी इजाज़त नहीं है, निगाहें नीची किए जवाब देना है और एक सवाल सबसे होगा। बारी है हमारे नातख्वां इस्लामी भाइयों से। नंबर आपको 6 दिखाए जाएंगे, बताइए कौन सा नंबर पसंद करेंगे? जी 6 नंबर बताइए। 6 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? ग़ज़वा और सरिया में क्या फ़र्क है? ग़ज़वा उसे कहते हैं जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बनफ़्स नफ़ीस शिरकत फरमाई, और सरिया उसे कहते हैं जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शिरकत ना फरमाई। थोड़ा सा ठीक कीजिए, जवाब तो आप ठीक दे रहे हैं। सरिया की तारीफ़ थोड़ी सी मज़ीद। जिस जंग में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शिरकत ना फरमाई। तो आज भी जंग होगी तो वो सरिया होगी। फिर उस वक्त उस दौर के अंदर जो, इसमें थोड़ी सी कमी है। सेकंड्स आपके ख़त्म हो गए हैं। मजलिस फैसला करेगी कि क्या ये जवाब दुरुस्त है। तारीफ़ ये है, ग़ज़वा तो वही है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद शरीक हुए। सरिया उसको कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम में शामिल तो ना हो बल्कि अपने असहाब को किसी दुश्मन के मुकाबले में भेज दें, यानी आका ने भेजा उस लश्कर को, तो उसको सरिया कहते हैं। उस दौर तो इन्होंने कहा था, क्या कहेंगे? जी 1 नंबर दिया जाएगा। मुकाबला मजीद कुछ जो है जनाब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रहा है। बारी है हमारे मदनी चैनल वालों की। नंबर जनाब देखिए 4 नंबर। 4 नंबर के पीछे क्या सवाल है? 4 नंबर के पीछे सवाल है, इज्तिबा किसे कहते हैं? इत्तिबा ये होता है कि थोड़ा माइक के करीब आकर बोलिए। जब एहराम बांधते वक्त दाएं कंधे को खुला रखना, दाएं कंधे के नीचे से एहराम निकालकर बाएं कंधे पर डाल देना, इसको इत्तिबा कहते हैं। एहराम की हालत में जब तवाफ करना होता है तो इज्तिबा किया जाता है, दायां कांधा खुला रखा जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फर्क अब 1 नंबर का हो गया है। गोया एक जवाब सही या गलत मुकाबले को यहां से वहां कर सकता है। अब देखते हैं, हमारे नातख्वां इस्लामी भाई कुछ वजीफा भी पढ़ रहे थे। चले बताइए कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 1 नंबर। 1 नंबर। चलें भाई, आसान सवाल आ गया है लेकिन वो आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तारीख़ विसाल क्या है, मगर वो मुकम्मल तारीख बतानी होगी। पच्चीस सफरुल मुज़फ्फर। यहां तक तो ठीक है, अब सन बताइए। 1253 या 1353। ना 1253 है ना 1353 है। जी जनाब, गलती हो गई है। 1340 सने हिजरी ब मुताबिक 1921 सने ईसवी जुम्मतुल मुबारक का दिन था। क्या 1 नंबर देंगे? 1 नंबर दिया जाएगा। नातख्वां 1-1 नंबर ले रहे हैं, मदनी चैनल वाले 2-2 ले रहे हैं। जनाब बारी मदनी चैनल वालों की। नंबर दिखाइए, कौन सा पसंद करेंगे? सही जवाब देने पर मुकाबला टाई हो जाएगा। जी बताइए आप कौन सा नंबर पसंद करेंगे, 2, 3 या 5?
2 नंबर। 2 नंबर। अल्लाह अल्लाह, डरते डरते 2 नंबर बोला है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शहजादियों की तादाद बताएं। 4। आपने कहा 4 और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुकाबला बराबर हो गया है। और आखिरी सवाल है, दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों के कंधे पर अपनी मजलिस का बोझ आ गया है। कोई आज हमसे जुदा हो जाएंगे और कोई एक होंगे जो एक कदम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नाजरीन, आप भी देखिए ज़हनी आजमाइश का ये सिलसिला किस तरफ जा रहा है। बारी है अब हमारे मदनी चैनल के बाद नात ख्वां इस्लामी भाई की। अब असद भाई कौन सा नंबर पसंद करते हैं? इमाम साहब की इक्तिदा में पूरी मजलिस मौजूद है। अब देखना है, ये तो नहीं कहूँगा कि नैया का क्या हाल करते हैं। ज़ाहिर है हर सवाल का जवाब हर वक्त आए ये ज़रूरी नहीं होता। जी बताइए, आपके पास तो चांस भी है, उनके पास तो चांस भी नहीं होगा। जो नंबर बचेगा वही जवाब देना पड़ेगा। अब आप बताएं 3 या 5? 5 ही दे दें। 5 ही दे दें। और लगता है कि आपके लिए कुछ आसानी की सूरत बन गई है। बड़ा आसान सवाल आ गया है। जब पहली बार वही मुबारक नाजिल हुई उस वक्त प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक क्या थी? पहली वही जब नाजिल हुई नबी पाक की उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। आपने फरमाया 40 साल। मशवरे की आपको गुंजाइश भी नहीं थी। आपने भी सोचा होगा आज पीछे इस इमाम के क्या होता है हमारा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह, इन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया है। अब बारी है मदनी। आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद नवीद अत्तारी। नवीद अत्तारी। चले नवीद भाई, अब तो एक ही नंबर रह गया है, उसके पीछे बताएं क्या सवाल है और नवीद भाई उसका क्या जवाब देते हैं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही है तो इनका पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। 3 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है बताइए। आप हाफिज हैं नवीद भाई? जी हाफिज हैं, तो फिर तो लगता है आप जवाब दे देंगे। कुरान करीम की पहली मंजिल की इब्तिदा सूरह बकरा से होती है। बताएं इख्तिताम कहां होता है? पहली मंजिल कहां खत्म होती है? सूरह माइदा। पारा कौन सा है? किस पारे में पहली मंजिल खत्म होती है? सेकेंड्स गालिबन खत्म हो रहे हैं। 6 जी 6। अल्लाह 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 अल्लाह। 6ठे पारे में तो होती है, लेकिन सूरत आपने गलत बता दी है। सूरह निसा में पहली मंजिल का इख्तिताम होता है। 1 नंबर शायद हमारी मजलिस ने देगी, लेकिन 1 नंबर से शायद ये सिलसिला, ये मुकाबला कहीं और जा रहा है। क्या कहेगी मेरी मजलिस? एक नंबर दिया जाएगा और बड़ा शानदार मुकाबला हुआ। आइए करीब तशरीफ लाइए मदनी चैनल वालों। बड़ा क्लोज जो कंपटीशन था। और एक, हालांकि देखें इंसान बाज़ औक़ात वो बड़ी सामने की चीज़ होती है और उसे याद नहीं आता। कन्फ्यूजन, टेंशन एक बड़ी चीज़ होती है, लेकिन बहुत अच्छा मुकाबला नात ख्वानों ने भी किया, मदनी चैनल वालों के। आइए इनके लिए हम मदनी चेक इन्हें पेश करते हैं। आपके लिए ये इंशाल्लाह 2600 रुपये का मदनी चेक। आप मकतबतुल मदीना पे चाहें तो यहाँ भी ख़रीदारी कर सकते हैं, चाहें तो मकतबतुल मदीना हमारा जो हेड ऑफिस है हमारा फैज़ान मदीना में जहाँ हमारा मकतबा है वहाँ भी जा सकते हैं। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ज़हनी आजमाइश इसी का नाम है। दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो जाती हैं, आखिरी सवाल पे फैसले होते हैं। जीते ये हैं, लेकिन इनसे पूछिएगा कि इनकी इस वक्त दिल की कैफियत क्या है। और ये अभी भी क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुँचे हैं। थोड़ी देर बाद एक और मुकाबला आपका होगा। अब वो खुसूसी इस्लामी भाइयों से होता है या आईटी वालों से होता है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मदनी चैनल वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने हमारे इस सिलसिले को रौनक बख्शी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आइए स्कोर बोर्ड आखिर में देख लेते हैं। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। अशआर में नात ख्वां आगे बढ़ गए, मगर बड़ी अच्छी जंप फिकई पहेलियों में लगाई हमारी मदनी चैनल मजलिस ने। और आखिरी सवाल के वो भी आधे जवाब ने मुकाबला आगे पीछे कर दिया। 15 और 16 नंबर से ये मुकाबला नात ख्वां आगे ले गए हैं, मगर एक मुकाबला और होना है इनका। देखते हैं आज क्वार्टर फाइनल में हमें कौन ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखें। जी मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ सांसें जो बेरब्त हुई थी उन्हें
सुकून दे दीजिए, क्योंकि अब एक और मुकाबला होना है, बल्कि आज 2 मुकाबले और होने। कुछ कॉल्स हैं यहाँ, कुछ कल की कुछ कॉल सुना दे जब तक ये हमारी तैयारी यहाँ तक हो जाएगी। जी सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम नासिर महमूद है, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। अभी मैं ज़हनी आज़माइश प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो उसमें वो एक जो है ना भाई साहब वो देख नहीं सकते, उनको एक उम्रे का टिकट दिया। तो मैं वो बशीर साहब के वो जो सेकंड कोलीग है ना उनका स्पॉन्सर करना चाहता हूँ उम्रे का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। आपका पैगाम तो हमें कल मिल गया था, कॉल हम आज उसको ऑन एयर कर रहे हैं। जी मजीद कॉल्स दीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम नवील अफसर है और मैं बर्मिंघम इंग्लैंड से फोन कर रहा हूँ, और ये उम्रे का जो दूसरा टिकट है मैं ये डोनेट करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारी एक पुकार पर आप इतने सारे इस्लाम भाई आ गए। कल मुझे बताया गया कि बहुत सारी कॉल्स, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आए, बल्कि मैं बताता चलूँ कि मैं जब सिलसिले से फारिग हुआ तो मेरी वालदा का मैसेज मेरे मोबाइल पर था, क्योंकि मैं देख नहीं सका उस वक्त। तो उन्होंने यही कहा था, सबसे पहले शायद उन्होंने ये नीयत की थी कि जो हमारे नाबीना इस्लामी भाई हैं उसको मैं टिकट पेश करूँगी, लेकिन फिर मैंने अपनी वालदा से यही कहा कि अम्मी हम ऐलान किसी और का कर चुके हैं। तो वालदा ने यही कहा कि किसी और खुसूसी इस्लामी भाई के लिए इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। बहरहाल अगली कॉल दे दीजिए। मैं मोहम्मद रियाज बोल रहा हूँ मदीने शरीफ से। मैं हिंद का रहने वाला हूँ, सिंध कानपुर का। मैं मदीने शरीफ का उम्रे का आधे का टिकट का पैसा दे सकता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बल्कि कल एक बड़ा दिलचस्प मैसेज आया मुझे मोहसिन भाई, मुझे यकीन करें उम्रे के टिकट के तो बड़े मैसेज आए। एक मैसेज जिसको कहते हैं ना दिल को छू लिया। एक इस्लामी भाई उनका मुझे मैसेज आया, नाम मुझे उनका नहीं पता। कहते हैं कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी इनको उम्रे का टिकट पेश करता, लेकिन मैंने भी अब तक जो है ना मदीना नहीं देखा। दुआ कर दें कि मैं भी मदीना देख लूं। तो क्या पता उनकी ये नीयत करना उनको किस कदर नेकियां और बरकतें अता फरमा दे। तो बहरहाल कॉलें बहुत सारी होंगी, लेकिन आइए खुसूसी इस्लामी भाइयों को बुलाते हैं। आप भी तशरीफ लाइए, IT मजलिस के इस्लाम में भी तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। हमारे साथ खुसूसी इस्लामी भाई के साथ एक और इस्लामी भाई भी होते हैं, क्योंकि एक इस्लामी भाई वो हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ये इशारों में उनसे कोशिश करते हैं कि सवालात पूछें। बेटा आपको अगर चेयर कुर्सी की हाजत हो तो कुर्सी आपको पेश कर दें? नहीं, आप इंशाल्लाह खड़े रह जाएंगे। इनको पैर में प्रॉब्लम है, मगर माशाल्लाह फिर भी इनका जज्बा है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। ये 3 इस्लामी भाई हमारे साथ हैं और माशाल्लाह कल ही इन्होंने दिल जीत लिए हैं। मुकाबला तो वैसे ही लगता है कल ये जीत गए हैं। क्या लगता है आपने आगे जाना है या यहीं से वापस चले जाएं? टिकट तो वैसे ही मिल गए आपको। कोशिश इंशाल्लाह आगे। अच्छा चलें जनाब, यानी लगता है मदीने भी जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें भी खरीदनी हैं। चलें देखें क्या होता है। आप माशाल्लाह IT मजलिस वाले हैं, मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त आपने किया था। आज देखते हैं मुकाबला कैसा होता है। बारी है IT मजलिस वालों की। याद रहे हम उसी तरह सेगमेंट्स चलाएंगे। जवाब दीजिए सवाल का, शेर मुकम्मल कीजिए, फ़िक़ही पहेलियाँ, और आखिरी हमारा सेगमेंट होगा जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। पहला सेगमेंट शुरू करते हैं, जवाब दीजिए सवाल का। जी बताइए, दज्जाल की पेशानी पर क्या लिखा होगा? बड़ा जारिहाना मशवरा करते हैं। दज्जाल की पेशानी पर काफ फा रा लिखा होगा, जिसे सिर्फ मुसलमान देखेंगे, यहूदों को ये नजर नहीं आएगा। काफ फा रा यानी काफिर लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा, ये काफिर को नजर नहीं आएगा। जवाब इनका दुरुस्त है जी। हजरत सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु पानी के इसराफ से रोकने के लिए क्या फरमाते हैं? जी जवाब दीजिए। वुज़ू में पानी ज़्यादा बहाने में कोई भलाई नहीं है। और ये काम
اور یہ کام شیطان کی طرف سے ہے. جی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ بھلائی نہیں اور یہ کام شیطان کی طرف سے ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ. آئی ٹی والوں، جب دو شخص ملاقات کرتے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ جی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ جب دو شخص آپس میں ملیں تو ان میں سے پہلے سلام کون کرے، سلام میں پہل کون کرے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو شخص آپس میں ملیں تو جو پہل سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. پہلے سلام کرنے والا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. جواب درست ہے. کتنی پیاری ترغیب مل رہی ہے کہ جب بھی ملاقات ہو سلام میں پہل کرنا چاہیے، اور یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت بھی ہے. بتائیں سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ سنت مبارکہ ہے. جی ہاں، یہ سنت مبارکہ ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ. چلیں آئی ٹی والوں، کیا حسد اور ایمان ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ حدیث پاک کی روشنی میں بتائیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. کچھ ٹھیک کیجئے. مومن کے دل میں حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے. جواب درست ہے. یعنی یہ حسد ایسی چیز ہے کہ جو ایمان کے ساتھ کیسے جمع ہوگا. حسد سے دل کو پاک کیجئے اور اپنے دل کو نور ایمان سے جگمگ جگمگ کیجئے. بڑی بری عادت ہے حسد. ہم سب کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. آئی ٹی والوں نے سارے جواب صحیح بتائے ہیں، مگر ان کا مقابلہ بھی ہمارے مدنی کمپیوٹر سے ہے. بہرحال ایک سوال ضرور کروں گا. یہ جب میں سوال پوچھتا ہوں آپ پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ جی مشورہ کرتے ہیں. اچھا، مشورہ کرنے کے لیے پیچھے ہوتے ہیں. فی الامر پہ عمل کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. چلیں جناب، بتائیے المدینۃ العلمیہ کی کتاب تکبر میں جو قیامت کے 4 سوالات مذکور ہیں، وہ 4 سوالات بتائیے. تکبر کتاب میں جو قیامت کے 4 سوالات مذکور ہیں وہ سوالات بتائیے. قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے، سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کے سوال کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، آپ نے شروع کر دی تھی بات تو پوری کر لیں ورنہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. اگر 4 سوالات آپ بتا سکتے ہیں. جواب آپ نہیں دے پائے ہیں. قیامت کے دن 4 سوالات ہوں گے. اپنی عمر کن کاموں میں گزاری؟ اللہ. اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اپنے جسم کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا؟ کوئی بات نہیں، ابھی 2 نمبر کا فرق آیا ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف جائیں، چلیں ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی سوال کریں. تیار ہیں آپ لوگ؟ کون سی کتاب تحفے میں دے رہے ہیں حضرت؟ انشاءاللہ عز و جل ان کو 3 تحفے پیش کریں گے. ارے واہ. ایک تو علمیہ کی کتاب ہے قوم جنات اور امیر اہل سنت، ٹھیک ہے. اور دوسرا امیر اہل سنت کا رسالہ ہے قبر کا امتحان، اور تیسری مدنی مکالمے کی DVD ہے سیرت اعلیٰ حضرت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کا تذکرہ، CD بھی ہے، رسالہ بھی ہے، کتاب بھی ہے. ناظرین آپ بھی للچا رہے ہوں گے یہ کتابیں آپ تک کیسے پہنچیں. dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے قریبی مکتبے سے حاصل کیجئے اور علم دین پڑھتے چلے جائیے، حاصل کرتے چلے جائیے. امیر اہل سنت ہی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ماشاءاللہ تقریباً ہی عطاری بیٹھے ہوں گے، باپا سے پیار کرنے والے ہیں. امیر اہل سنت کی والدہ مشفقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا انتقال کون سی شب ہوا تھا؟ وہ کون سی ہفتے کی رات تھی جس رات امیر اہل سنت کی والدہ محترمہ نے دنیا سے پردہ فرمایا؟ آپ یہاں آگے آ جائیں تھوڑے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت اجتماع میں موجود تھے جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب، تو اس رات ان کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تھا، اور کوئی ایک شخص امیر اہل سنت کو بلانے جواب بالکل درست ہے۔ اچھا یہاں یہ بھی بتاتا چلوں یہ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے۔ 17 صفر المظفر امیر اہل سنت کی والدہ محترمہ کا یوم عرس بھی ہے، تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ امیر اہل سنت جیسی اولاد آج دنیا کو انہوں نے عطا فرمائی کہ جس نے نہ جانے کتنی ماؤں کے بیٹوں کو سدھار دیا، کتنی ماؤں کے ادب کرنے والے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ اس ماں پر، ان کی قبر منور پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ سبحان اللہ، سوال کا جواب درست دے دیا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف۔ بتائیے جناب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ مجلس آئی ٹی والے آج بھی کوئی غلطی نہیں کر رہے، 6 کے 6 نمبر لے لیے ہیں، اور خصوصی اسلامی بھائی 4 نمبر 2 نمبر سے پیچھے ہیں، لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے۔ باری ہے شعر مکمل کیجئے۔ آئی ٹی والوں پہلا سوال آپ سے شروع کرتے ہیں سلسلہ شعر مکمل کیجئے۔ بہت خوبصورت شعر۔ آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ۔ سرسرے جوش بلا سے جل ملاتے جائیں گے۔ سرسرے جوش بلا سے جل ملاتے جائیں گے، جواب درست ہے۔ بہت مشکل شعر تھا لیکن جواب دے دیا ہے۔ اب باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی۔ جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں۔ جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جلدی بتا دیجئے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ تیرے قربان چمکنے والے۔ اگلا مصرع یہ تھا۔ آئی ٹی والوں کی باری ہے۔ بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے التجاؤ استعانت کیجئے، التجاؤ استعانت کیجئے، جواب یہ بھی درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ابر رحمت کے سلامی رہنا، ابر رحمت کے سلامی رہنا۔ خصوصی اسلامی بھائی لگتا ہے کل بہت خوش ہو گئے تھے اور تیاری میں لگتا ہے کمزوری آ گئی ہے۔ جناب سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں اور لگتا ہے یہ شعر نہیں آتا۔ پھلتے ہیں پودے لچکنے والے، غلطی ہو گئی ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، دونوں شعر نہیں بتا سکے اور دونوں شعر بتا دیے ہیں آئی ٹی والوں نے۔ اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے، پتہ نہیں پہلے سلسلے میں کیوں غلطی کر لی تھی۔ چلیں جناب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کو۔ جی 10 نمبر ہیں مجلس آئی ٹی کے اور 4 نمبر پر ہیں خصوصی اسلامی بھائی۔ اب بہت فرق بھی بڑھ گیا ہے اور سلسلہ بھی تھوڑا سا باقی ہے۔ وقت ہوا ہے فقہی پہیلیوں کا۔ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن۔ بتائیے وہ کون سا خطبہ ہے جس کو بیٹھ کر پڑھنے میں بھی حرج نہیں؟ خطبہ تو امام صاحب کھڑے ہو کے دیتے تھے، یہ کون سا خطبہ ہے جس کو بیٹھ کر پڑھنے میں حرج نہیں؟ چاہیں تو اشارہ لے لیں، چاہیں تو جواب دے دیں۔ جی وہ نکاح کا خطبہ ہے۔ آپ نے کہا وہ نکاح کا خطبہ ہے۔ دیکھیں خطبہ حج والے دن بھی ہوتا ہے، خطبہ جمعہ والے دن بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں کھڑے ہو کر خطبے ہوتے ہیں۔ نکاح کے خطبے میں بیٹھ کر پڑھیں تب بھی حرج نہیں، جواب بالکل درست ہے۔ 4 کے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی۔ وہ کون سی 4 رکعت کی نماز ہے جس کی تیسری رکعت میں ثنا اور تعوذ پڑھنے کا حکم ہے؟ ثنا بھی پڑھیں گے اور تعوذ بھی۔ نفل نماز اور سنت غیر موقدہ یہ جب بھی پڑھی جائیں گی
तो इनको सना और तावुज़ तस्मिया से इब्तिदा जी। नफल नमाज और सुन्नत गैर मौक़िदा में जब तीसरी रकात होगी तो उसमें सना और तावुज़ पढ़ा जाएगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बगैर इशारे के जवाब दिया, इसलिए ये भी 4 नंबर हासिल कर गए हैं। फ़िक़ही पहेलियों के जवाब भी दोनों तरफ से आ गए हैं। फिर चलना पड़ेगा स्कोर बोर्ड की तरफ और हमें स्कोर बोर्ड बताएगा कि मुकाबला कहाँ जा रहा है। जी 14 नंबर है मजलिस आईटी वालों के, 8 नंबर है मजलिस खुसूसी इस्लामी भाइयों के, 6 नंबर का फासला है जो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि किसी तरह कम हो जाए। बारी है, अब शुरू करते हैं सिलसिला सफर है मगर अकेले। थोड़ी देर के लिए हम आपको वहां ले जाएंगे और आपके साथ ये खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी बारी बारी सवाल होंगे, नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, 6 नंबर होंगे, एक एक नंबर का जवाब देना है। अब या तो ये हो जाए कि आईटी वाले तीनों के तीनों गलत बता दें और खुसूसी वाले तीनों सही बता दें, जब जाके बराबरी हो सकती है। अब देखें क्या होता है। चलें, आईटी वाले वैसे तो गलती करते नहीं। चलें, आप स्क्रीन पर नंबर्स देखे जाएंगे, बताइए कौन सा नंबर पसंद करेंगे। जी 3 नंबर बताइए, 3 नंबर के पीछे क्या सवाल है। मसीह बिन मरियम से यहां मुराद कौन सी शख्सियत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सैयदुना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। चलें जनाब, 2 नंबर ले लिए हैं। बारी है खुसूसी इस्लामी भाइयों की, इनसे पूछिए कि ये कौन सा नंबर पसंद करेंगे। स्क्रीन पर नंबर दिखाइए, इशारे से पूछ रहे हैं कौन सा नंबर। ये बता रहे हैं 1 नंबर। 1 नंबर के पीछे क्या सवाल है, अकेले इन्होंने जवाब देना है, इशारों से इनसे सवाल किया जाएगा। जी मेरे आका आला हजरत रहमा इस बारे में क्या फरमाते हैं कि अगर कोई मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दे तो क्या लिखा हुआ पाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह इशारों से दिल बताया, दिल के टुकड़े बताए, फिर उसमें लिखा क्या होगा, उन दिल के टुकड़ों पर क्या लिखा होगा। आला हजरत क्या फरमाते हैं। एक तरफ अल्लाह लिखा होगा, अच्छा, दूसरी तरफ मोहम्मद। इन्होंने नहीं बताया वैसे मैं इसकी रहनुमाई। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा करीब तो पहुंचे हैं, इशारे से समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन आला हजरत ये फरमाते अगर मेरे दिल के 2 टुकड़े किए जाएं तो एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखा होगा। गलती हो गई है। चले जनाब, अब बारी है मदनी चैनल वालों की। जी अच्छा, आईटी वालों की, माफ़ कीजिएगा, आईटी वालों से सवाल बताइए। नंबर 4 बताइए, 4 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है। हज व उम्रा के मौके पर तलबी पढ़ा जाता है, बताइए फरिश्ते उस तलबी की जगह क्या पढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है। जो हाजी पढ़ते हैं वो आता है आपको, क्या पढ़ते हैं। हम मिलके पढ़ लें अगर, तो थोड़ा याद ताजा हो जाएगी। कैसे पढ़ते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। आज यहाँ पढ़ने में इतना लुत्फ आ रहा है, यकीन करें जब बंदा एहराम पहनता है, आए हाय, और उस वक्त जब वो लब्बैक पढ़ता है, ख़ास तौर पर जब मक्का पाक पहुँचकर हरम में दाखिल हो रहा है और दिल में ये तसव्वुर हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, मेरे मौला में हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला वो सादत हम सबको जल्दी जल्दी बार बार अता फरमाए। जी बेटा, फरिश्ते क्या पढ़ते हैं ये बताना है आप। फरिश्ते भी इनके साथ तलबिया पढ़ते हैं।
फरिश्ते पढ़ते हैं सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जनाब आईटी वालों ने भी आखिरकार कोई गलती तो की है। बारी है हमारे मदनी चैनल खुसूसी इस्लामी भाई जी पढ़ते थे जब हज उम्रा के मौके पर तलबिया पढ़ा जाता है तो बताएं फरिश्ते उस वक्त क्या पढ़ते थे? ये पढ़ते थे। ठीक है, चलें जनाब, बारी है हमारे खुसूसी इस्लामी भाई की। बताइए 2, 5, 6। 5 नंबर। 5 नंबर, बड़ा प्यारा सवाल। हजरत यूसुफ अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम के कितने भाई थे? सेकंड्स गुजरते जा रहे हैं। कुरान पाक में भी तस्करा है कि कितने भाई थे। सेकंड्स खत्म। 11। अरे आखिरी सेकंड में जवाब दिया है 11 और बिल्कुल सही दिया है, जवाब दुरुस्त है जी। 11 भाई थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। जी बारी है हमारे आईटी के इस्लामी भाई की। जी आखिरी सवाल है इनसे, 2 या 6? 2। बताइए 2 नंबर के पीछे सवाल क्या है? बड़ा मुश्किल सवाल आ गया है। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की अंगूठी पर क्या मोहर थी? मदनी मुज़ाकरे में बापा ने यह बयान किया है। ला अदरी। ये नहीं लिखा था। अच्छा कोई है यहां पर जो जवाब दें? चले क्या तोहफा देंगे भाई इनको? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुंतखब हदीस अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब और साथ ही में इंशाअल्लाह 4 GB मेमोरी कार्ड दिया जाएगा फर्ज उलूम पर मबनी। 4 GB में फर्ज उलूम के बहुत सारे बयानात। वाह भाई, ये कितने का मिलेगा कार्ड अगर हमारे नाज़रीन? तकरीबन 350 रुपए का। 350 रुपए में आप मेमोरी कार्ड ले लें और फर्ज उलूम जो पूरा कोर्स हुआ था वो आप जनाब उसको सुन सकेंगे। 350 रुपए वाकई उसके लिए कुछ नहीं है। ये कार्ड तो लेकर तकसीम करना चाहिए और गालिबन मुझे याद पड़ता है कि ये डाउनलोड के लिए भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, करीबी मकतबे से हासिल करें। जी क्या लिखा था उस अंगूठी पर? गलत जवाब देने पर काफिले मजलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ये तो भाई एक कोई पूरी दाढ़ी शरीफ की भी साथ साथ नियत कर लें तो क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बेटा। मैं नहीं जानता। नहीं वो तो उन्होंने भी कहा था ला अदरी। अब आप भी काफिले में सफर कर लें। नहीं जनाब ये जवाब सही नहीं है। आपकी अंगूठी पर क्या लिखा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौत लिखा था। नहीं कुछ और बताइए। अगला कोई इस्लाम पे जवाब दे। 2 इस्लाम पे काफिले के लिए तैयार कर लें भाई मजलिस वालों। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस अंगूठी में अलमौत लिखा था। अब वो कहा उन्होंने अलमौत नहीं था, गलत हो गया जवाब। उसमें लिखा था कफा बिल मौति वाइदा, मौत नसीहत के लिए काफ़ी है। और वाकई मौत का जिक्र अगर कोई करे तो वो नसीहत के लिए काफ़ी है। आखिरी सवाल है खुसूसी इस्लामी भाइयों से। जी बताइए कौन सा नंबर बाकी है? जो बाकी है वही सवाल कर लीजिए जनाब। 6 नंबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में जलवा गर थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुसूसी इस्लामी भाइयों का हमारा साथ लगता है यहाँ तक था, हमारा साथ ख़त्म हुआ, लेकिन ये शायद लाखों नाजरीन के दिल जीत गए। माशाल्लाह तीनों खुश नसीबों को उम्रे का टिकट तो मिल ही चुका है कल, तो लगता है ये अब अगलों के लिए कुछ चांस बनेगा। जी आईटी वाले भी आ जाएं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिलसिला रहा। मदनी चेक भी इनको पेश करते हैं इंशाल्लाह, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द आप हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी, अल्लाह करे हमारे फाइनल जीतने वाले और आप सब मिलकर एक साथ जाएँ इंशाल्लाह। आप चारों को हमारे नाजरीन की तरफ से उम्रे की टिकट की खुशखबरी भी मुबारक हो। और ये 2600 रुपये का चेक जो है शबीर भाई आप लोग किस तरह तकसीम करेंगे? आप आधा आधा करेंगे? चले भाई, मेरी गुजारिश है हमारे शबीर भाई को भी एक मदनी चेक दे दिया जाए, अगर मौजूद है तो दे दें। जी माशाल्लाह।
माशाअल्लाह। तो अब आप क्या खरीदेंगे मकतबे से? किताबें खरीदेंगे। तो पढ़ेंगे कैसे? कोई पढ़ेंगे, वो आपको सुनाएंगे, इस तरह तरकीब बनाएंगे। अच्छा माशाअल्लाह। आप क्या करेंगे भाई? 2600 में क्या खरीदेंगे? मैं फैमिली मेंबर से या किसी और से ये सीखने की कोशिश। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जज्बा देखें। आंखें नहीं मगर फिर भी किताबें खरीदेंगे। वो सुन और बोल नहीं सकते मगर घर वालों को किताबें देंगे, फिर उनसे समझने की कोशिश करेंगे। दैट्स द स्पिरिट। ये है माशाल्लाह जज्बा इल्म दीन हासिल करने का। ए आँख वालों, ए वो इस्लामी भाइयों जो बोल सकते हो, जो सुन सकते हो, अगर फिर भी आप इल्म दीन से महरूम हैं तो ये बहुत बड़ी महरूमी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी बहुत मुबारक हो। थोड़ी देर बाद आपको, बल्कि आप तो यहीं तशरीफ़ रखें क्योंकि अब नातख़्वां इस्लामी भाई आएंगे और आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। आपने आकर हमारे सिलसिले को बहुत ज़ीनत बख्शी, आप हमें हमेशा याद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में जाने से पहले आइए स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। जी 16 नंबर हैं मजलिस आईटी वालों के और 12 नंबर हैं खुसूसी इस्लामी भाइयों के। फ़कत 4 नंबर से पीछे रह गए, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। हमारे दिलों में ये याद रहेंगे, हमारे सिलसिले से ज़रूर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नातख़्वान इस्लामी से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ, आप यहाँ तशरीफ़ रखें, हम नाज शरीफ भी सुनेंगे और इंशाअल्लाह अपने सिलसिले को फिर आगे लेकर चलेंगे। अल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। यहाँ आ जाए, आगे आ जाए। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़र फूल बदन फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़र फूल बदन फूल। सदके में तेरे बाग तो क्या लाए हैं बन फूल। सदके में तेरे बाग तो क्या लाए हैं बन फूल। सदके में तेरे बाग तो क्या लाए हैं बन फूल। इस गुलचाए दिल को भी तो ईमान हो के बल फूल। इस गुलचाए दिल को भी तो ईमान हो के बल फूल। लब फूल दहल फूल ज़क़र फूल बदन फूल। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे में हन फूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे में हन फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़र फूल बदन फूल। और वल्लाह वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना। वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना। वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना। मांग
مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پنا اے چرخ کوہن پھول، اتنا بھی مہے نو پنا اے چرخ کوہن پھول، لب پھول دہن پھول زدن پھول بدن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، دندان و رخ و زلف و لب و شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول، ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول، کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، واللہ کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اعلیٰ حضرت کا تخیل کتنا پیارا ہے، کرم کا چمنستان، کرم کا باغ، اور اس کے پھول کون ہیں، اس کی کلیاں کیا ہیں، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس دمکتے چمکتے مہکتے باغ کی برکتیں ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ میرے ناظرین، کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو کچھ دکھائیں گے، وہ کیا ہے تھوڑی دیر بعد، آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ندیم افسر ہے اور ہم برمنگھم انگلینڈ سے فون کر رہے ہیں۔ میں نے ایک ٹکٹ کل عمرے کے لیے لیا تھا اور آج میرے بانجے کی طرف سے کیسر جاوید کی طرف سے یہ ایک اور عمرے کے لیے ٹکٹ میں دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، میں ذہنی آزمائش بہت شوق سے دیکھتا ہوں، مدنی چینل بہت اچھا جزاک اللہ خیر۔ بڑی مہربانی آپ کی حوصلہ افزائی کا، جزاک اللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمیر رضا طارق ہے، میں گوجرا کے قریب گاؤں سے بول رہا ہوں۔ مجھے یہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے،
اللہ اس سلسلے کو ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. मां मज़ा ज़मज़म ना का हैदराबाद खां ॻाल्हाए रहियो आहियां. मुंहिंजो पैगाम आहे त असांखे ज़हनी आज़माइश सिलसिलो ॾाढो पसंदि आहे. असां सिलसिलो न आहियूं ॾिसी सघंदा सही तरीक़े सां. लाइट हली वेंदी आहे असां वटि ऐं जंहिंमहिल रिपीट थींदो आहे त असां वटि केबल हली वेंदी आहे. इन जो मसइलो आहे. असांखे सिर्फ़ु इन जी फिक्र हूंदी आहे त फाइनल असां कीअं ॾिसंदासीं. इन जे करे तव्हां असां वटि दुआ कयो लाइट न वञे फाइनल में. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. ये तो ॾाढो मसलो थी वियो तव्हां साथ. वैसे जहाँ लाइट का प्रॉब्लम है, मैं ये बताता चलूँ कि मदनी चैनल फ़ोन टेलीफोन पर भी सुना जा सकता है. मोबाइल नंबर्स बार बार प्रोमो चलते हैं ताकि अगर किसी के लाइट जाए. मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आधा सिलसिला देखा लाइट चली गई. तो एक तो ये रिपीट होता है, रिपीट देख लें, वरना अगर लाइट चली जाए तो आप हमारे जो मोबाइल नंबर्स पर बहुत थोड़े पैसे लगते हैं लेकिन आप सिलसिला सुन सकेंगे. हो सकता है इस वक्त भी कई नाजरीन तो नहीं कहेंगे, सामईन फ़ोन पर सुन रहे होंगे हमें. चलें जनाब अगली कॉल दीजिए. मेरा नाम मोहम्मद आबिद अत्तारी, चौक इमाम आजम से. अब्दुल अजीज भाई माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है. हम सब फैमिली घर में बैठकर देखते हैं बहुत खुशी व खुशू से. खुशू व खुशू से देखते हैं. क्या बात है आपकी जनाब. चलें अगली कॉल दे दीजिए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी मैं मोहम्मद गाजी जिला डेरा बुगटी बलोचिस्तान रोटी के फील्ड से कर रहा हूँ. मुझे सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत पसंद है. माशाअल्लाह सिलसिला देखकर मेरे इल्म में इजाफा होता है. डेरा बुगटी, मैं ये देख रहा हूँ कि कभी यूरोप से कॉल आती है, कभी ऐसे गांव से कॉल आती है, लेकिन माशाल्लाह बहरहाल कॉल्स हमने ली. अब हम आपको क्या दिखाएंगे. दुनिया में बड़े बड़े अजीब नज़ारे हैं. अल्लाह ताला की मखलूक, अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब मखलूक बनाई है, खूबसूरत मखलूक बनाई है. हम इंसान भी अल्लाह की मखलूक हैं, मगर अल्लाह ताला ने इंसानों में भी कैसे लोग बनाए हैं, आइए कुछ देखते हैं. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर वो दर है. यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोगों को देखने का मौका मिलता है. ये हमारे छोटे इस्लामी भाई हैं और एक बड़े ही तवीलुल कामत हमारे इस्लामी भाई मौजूद हैं. ये दोनों भी मदनी चैनल देखते हैं. हाँ जी हम देखते हैं, हम बड़े गौर से देखते हैं. बड़ा ऊंचा हाथ करना पड़ रहा है इन तक माइक पहुंचाने के लिए. इस पे नजरे करम सरकार की दावत इस्लामी से यूं प्यार है. इतना तवील कामत होना और इतना पस्त कद होना, लेकिन ये इन लोगों के लिए ऐब नहीं है. इतने बड़े कद में जिंदगी गुजारने मुश्किलात तो हैं, लेकिन मैं खुश बहुत हूँ क्योंकि मेरे को अल्लाह ने बनाया है. मैं आपके जूते देख रहा हूँ. जूते और ये लिबास तो आपको आसानी से नहीं मिलता होगा. जहाज में मैं ऐसे बिल्कुल नीमा हो जाता हूँ. गाड़ी में फिर कैसे बैठते हैं. गाड़ी में अगर छोटी कार हो ना तो उसको जो सीट है ना उसको पीछे कर लेता है. आपने 2 अंगूठियां पहनी हैं. अच्छा मैं ये बड़ी वाली उतार लेता हूँ. बचपन ही से छोटा कद, जाहिर है कि ये तो छोटा हो ही नहीं सकता. आप तो मदनी मुन्ने लगते हैं कमर भाई. मदीने में आए हैं और आपने बताया आप आते रहते हैं. कितनी बार आ गए. हमें बहुत खुशी हो रही है जब मदनी चैनल से हमारा प्रोग्राम हो रहा है. कल तक हम मदीना चैनल को देखते थे, आज साथ बैठे हैं हमारे. ये मेरा भाई है. नॉर्मल है. बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है. सामने नजर आ रहा है, देखो तो सही. अच्छा, हम तीनों के हाथ में फर्क देखें. अल्लाह की शान है. तारी हूँ तारी मदनी चैनल को सलाम कहता हूँ. सुभान अल्लाह. देखते रहिए आप सब मदनी चैनल. अल्लाह ताला की शान है माशाल्लाह. बड़ी यादगार मुलाकात थी इस्लामी भाइयों से. वाकई इस्लामी भाई थे माशाल्लाह. मदनी चैनल ये देखते थे. इत्तेफाकन मदीना मुनव्वरा में मुलाकात हो गई तो मेरा जहन बना मैं खुद क्यों मिलूँ, हमारे नाज़रीन को भी मिला देते हैं. आइए शुरू करते हैं सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 5. अब ये आज फैसला करेगा कि क्वार्टर फाइनल में कौन हमारे साथ जा रहे हैं. सल्लू अलल हबीब. शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ. इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ. आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा. आजमाइश यहाँ.
वैसे वाकई हमारा सिलसिला भी जो है ना वो हमारी मजलिस के लिए भी आजमाइश है। 3-3 मुकाबले अरेंज करना, स्क्रीन के नाम चेंज करना, वाकई इनका कमाल है। ये इतनी जल्दी स्कोर बोर्ड भी बना रहे हैं, मुझे भी थोड़ी देर बाद सवाल चेंज करके देते हैं। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारी ख़ास तौर पर कैमरामैन मुझे कहते हैं अब्दुल हबीब भाई हम तो नज़र नहीं आते, हमारे इन कैमरामैन्स के लिए, हमारे डायरेक्टर्स के लिए, हमारे एडिटर्स के लिए, सबके लिए दुआ करें। शुरू करते हैं सिलसिला, जिसका पहला सेगमेंट है जवाब दीजिए सवाल का। पहला सवाल आईटी वालों से। याद रहे ये लास्ट प्री क्वार्टर फाइनल बन चुका है, यहाँ से आगे आप क्वार्टर फाइनल को ज्वाइन कर लेंगे। गलती करेंगे, पीछे रह गए तो हमसे जुदा हो जाएंगे। पहला सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसके हाथ में असाए मूसा और उंगश्तरी सुलेमान अलैहिस्सलाम होगी? उस जानवर का नाम बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कोई जानवर है जिसके हाथ में असाए मूसा और हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की उंगश्तरी यानी अंगूठी होगी। जी, दाबतुल अर्द, ये जानवर कयामत के करीब रोनुमा होगा। कुर्बे कयामत के वक्त ये जानवर रूनुमा होगा। दाबतुल अर्द जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। मशवरा करते हैं तो जवाब सही ही देते हैं, अकेले सफर में कुछ फंस जाते हैं। बारी है नातखा वालों की। क्या मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक इंसान के बदन के साथ बाकी रहता है? जी हाँ, मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक इंसान के जिस्म के साथ रहता है, अगरचे उससे जुदा हो जाती है, लेकिन जो कुछ बदन पर मामलात होते हैं रूह उसको महसूस करती है। जो बदन पर गुजरेगी रूह जरूर उससे आगाह होगी। अगरचे रूह बदन से जुदा हो जाती है मगर उसका ताल्लुक, उसका कनेक्शन बाकी रहता है। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक बताएं कि जन्नत की खुशबू कितनी दूर की मुसाफत से सूंघी जा सकती है? जी, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफ़हूम के मुताबिक जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत से सूंघी जा सकती है। 500 बरस की मुसाफत से खुशबू सूंघी जा सकती है। जवाब ये भी दुरुस्त है। बताइए तहदीसे नेमत किसे कहते हैं? तकमील नेमत के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिलने वाली नेमत का इजहार करना, ये तहदीस नेमत कहलाता है। किसी इबादत की तकमील के बाद लोगों के सामने रब अज़्ज़ा वजल की नेमत का चर्चा करने के तौर पर इसको बयान करना तहदीस नेमत कहलाता है। जवाब हम इनका दुरुस्त मान लेते हैं। बताइए हदीस पाक के फरमान के मुताबिक आधी जिंदगी, आधी अकल और आधा इल्म किन चीजों को कहा गया? आधी जिंदगी, आधी अकल और आधा इल्म। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सवाल दोहरा दीजिए। हदीस पाक के फरमान के मुताबिक बताएं कि आधी जिंदगी, आधी अकल और आधा इल्म किन चीजों को कहा गया? टाइम आपका बिल्कुल खत्म हो रहा है। हदीस पाक के फरमान के मुताबिक खर्च में म्याना रवी आधी ज़िंदगी है, अच्छा सवाल आधा इल्म है और आधी अकल। आधी अकल लोगों से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करना, मोहब्बत से मेलजोल रखना। कितनी प्यारी बात है। मेरे आका के फरामीन कितने प्यारे। मफ़हूम हदीस है खर्च करने में मियाना रवी रखना आधी जिंदगी है। ए फजूल खर्ची करने वालों सुनो, लोगों से मोहब्बत करना आधी अकल है, अच्छा सवाल करना आधा इल्म है। जवाब दुरुस्त है। मुश्किल सवाल था मगर सही जवाब। बारी है नात ख्वां इस्लामी भाइयों से। हसद और बुग़्ज़ से क्या मुराद है? 2 अल्फाज में तहरीर करें। तहरीर तो नहीं करें, बयान करें। हसद और बुग़्ज़, हसद ये है कि किसी की नेमत के ज़वाल की तमन्ना करना। तारीफ नहीं, 2 अल्फाज में। यानी यूं समझे कि एक लफ्ज़ कहना हो हसद के बारे में तो क्या कहेंगे, बुग़्ज़ के बारे में कहना होगा तो क्या कहेंगे? छुपी दुश्मनी, हसद। हसद। और बुग़्ज़ से मुराद किसी को बोझ जाने, एलानिया दुश्मनी।
जी, दिली खुफिया दुश्मनी हसद है, बुग़्ज़ से मुराद एलानिया दुश्मनी है। जवाब दुरुस्त है। मुश्किल मुश्किल सवाल आए मगर गलती नहीं की। दोनों टीम्स 2-2 मुकाबले जीत चुकी हैं। याद रखिएगा मेरे बीच इस्लामी भाइयों, क्वार्टर फाइनल पहुंचने के लिए तीसरा भी जीतना जरूरी है। अब देखते हैं आज कौन पीछे रहता है। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 6 नंबर, कोई गलती नहीं की है। इनसे पहले कि शेर मुकम्मल कीजिए सुने, आइए यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल करते हैं। जी हुजूर, क्या तोहफा दे रहे हैं? वैसे पिछले सवाल के जवाब में तो किताब गई नहीं थी। अच्छा, रह गई थी। से उसके साथ इंशाअल्लाह एक और किताब बुराइयों की माँ, अच्छा, शराब की मजम्मत पर निगरान शुरा का बयान है, उसको तहरीर सूरत में लाया गया। बड़ा बेहतरीन बयान है, इसको भी इंशाअल्लाह तो मेमोरी कार्ड भी देंगे। मेमोरी कार्ड भी, क्या बात है। चलें भाई, अमीर अहले सुन्नत की वालदा का आज हमने तस्करा किया। बताइए अमीर अहले सुन्नत की वालदा मुशफिका की जबान पर आखिरी वक्त क्या जारी था? आखिरी वक्त उनकी जबान पर क्या जारी था? सुभान अल्लाह। सिंधी टोपी वाले इस्लामी भाई, सिंधी टोपी वाले भाई आगे आ जाए। लगते तो बलूचिस्तान के हैं। कहां से आए आप? जी, चलो भाई, दोनों की गलती हो गई। पंजाब से हैं जी, फरमाइए। आखिरी वक्त कलमा तैयबा था। और भी कुछ जबान पर जारी था। और बापा के मुतल्लिक थे, बापू बापू की। बापा को याद तो कर रही थी। कलमा तैयबा के साथ एक और भी विर्द था, अस्तगफिरुल्लाह। जी, इस्तगफार और कलमा तैयबा पढ़ने के बाद आपकी जबान बंद हुई। जवाब दुरुस्त है। एक बार फिर हम यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी दुआ गो हैं। मदनी चैनल के नाजरीन से भी मैं अर्ज करूंगा कि आज कम से कम 3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, 1 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़ के हमारी मोहसिन अमीर अहले सुन्नत की अम्मी हुजूर, उनको ज़रूर इसाले सवाब कीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी कब्र मुनव्वर पर करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश बरसाए। चले जनाब, बारी है, हम मुकम्मल करेंगे। अब सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नात ख्वां इस्लामी भाई भी हैं, आईटी वाले भी हैं। पहला शेर पूछेंगे हमारे आईटी वालों से। मेरे आका हजरते अच्छे मियाँ, मेरे आका हजरते अच्छे मियाँ, मेरे आका हजरत अच्छे मियाँ हो रज़ा अच्छा वो सूरत कीजिए। हाय हाय हाय, क्या प्यारी इल्तिजा है। आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से कैसी इल्तिजा की है। मेरे आका हजरत अच्छे मियाँ, उनका नाम अच्छे मियाँ था, उनको पुकारा जाता था। हो रज़ा अच्छा वो सूरत कीजिए। वाह वाह, क्या बात है। आला हजरत की तर्ज में सुना सकते हैं ये? सुनाइए। मेरे आका हजरते अच्छे मियाँ हो रज़ा अच्छा वो सूरत कीजिए, हो रज़ा अच्छा वो सूरत कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये शेर उनका था, आपने अपना सुनाना है। चलें। बा अदब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का। बा अदब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का। बा अदब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का। गुल तल मोहम्मद मुस्तफा, गुल तल मोहम्मद मुस्तफा, चमनुल का पाक दियार है, का पाक दियार है। जवाब दुरुस्त है। चले जनाब, बड़ा खूबसूरत शेर। इस शेर को मैं बहुत बार पढ़ता रहता हूँ। बहरहाल पता नहीं आपको याद है कि नहीं। लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। बताएंगे ये चराग कौन सा है? मोहब्बत इश्क मुस्तफ़ा की। नहीं, ये आला हजरत का कमाल अंदाज है कि इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात की है। ऐ वो इस्लामी भाइयों जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, आला हजरत कहते हैं लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले। आका के इश्क की निशानी कब्र में ले जा रहा हूं। सुना है ना, कब्र की रात बड़ी अंधेरी है। कहते हैं लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी
चराग लेके चले। अल्लाह ने चाहा ये दाढ़ी कब्र में चराग का काम देगी। रख लो दाढ़ी। देखिए कब्र में ये वो सुन्नत है जो साथ जाएगी। सोचिए नहीं कि जनाब बाद में रख लूंगा। मुझे बहुत सारे इस्लाम में मिलते हैं, मैं एक सवाल करता हूँ, ये बताओ कब्र में तो दाढ़ी लेके जाएंगे? कहते हैं हाँ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़े अरसे बाद रख लेंगे, शादी के बाद रख लेंगे, बूढ़े होकर रख लेंगे। कब्र में लेकर जाएंगे? हाँ भाई पक्का लेके जाएंगे। आप भी चलें। जितने नाज़रीन मुझे देख रहे हैं यहाँ मौजूद इस्लामी भाई, कौन कौन नियत करता है कब्र में दाढ़ी लेके जाऊंगा? दिखाएं भाई, नाज़रीन को दिखाएं। सारे हाथ उठा रहे ना, 100% हाथ उठा रहे। कब्र में सारे दाढ़ी लेके जाएंगे। अब ये बता दे कब्र में कब जाएंगे? किसी को डेट पता है? किसी को नहीं पता। तो अगर आज चले गए तो बगैर दाढ़ी के चले जाओगे भाई। तो फिर आज अभी रख लीजिए, देर ना कीजिए, क्योंकि कब्र में इंशाल्लाह ये दाढ़ी चराग का काम करेगी। तर्ज में सुना दे भाई। लहद में इश्क रुख़ शहर का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। आपको इस्लामी भाइयों से अब सवाल है, और ये सवाल बड़ा प्यारा है, ये शेर भी बड़ा प्यारा है। वो रजा के नेज़े की मार है कि वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। किसे चारा जोई का बार है, किसे चारा जोई का बार है, कि बार बार से पार है, कि ये बार बार से पार है। आला हजरत की क्या बात है जनाब, गलती कोई नहीं की है, मुकाबला बिल्कुल बराबर बराबर जा रहा है। शायद आपकी सांसें भी बेरब्त हो रही हैं, इनका हाल तो यही बताएंगे। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जी। 10 नंबर हैं, कोई गलती नहीं की है, गलती करना ज़रूरी है, किसी को आगे जाना है भाई। चलें जनाब देखते हैं कि वो गलती कौन करता है। अब 2 सेगमेंट्स बाकी हैं, ये आज फैसला करेगा राउंड कि कौन क्वार्टर फाइनल में जाएंगे और आज हमसे कौन जुदा हो जाएंगे। वक्त भी मुझे एहसास दिला रहा है कि बहुत हो गया है, मगर यहाँ से भी इशारा आ रहा है कि हमसे भी कोई शेर पूछा जाए। चले जनाब, आला हज़रत का एक शेर, बड़ी अजीब बात है। हालांकि आला हज़रत ने एक शेर में इस्तेमाल किया है खंजरे खूंखार। है कोई बताने वाला, क्या तोहफा देंगे इनको? इंशाअल्लाह मदीना डायरी जो इस साल की नई मकतबे ने शाया की है वो, और तज़किरा इमाम अहमद रज़ा। वाह भाई वाह। चलें भाई देखें आला हज़रत का ये शेर, बड़ा मुश्किल है, खंजरे खूंखार। चले ये साइड में जो इस्लामी बैठे हैं, वरना सीधा मदनी काफिले में जाना पड़ेगा, ख्याल रखिए गलत जवाब देने पर। चलें जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। किल के रजा है खंजर खूंखार, आगा से कह दो खैर मनाए नशर करें। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। क्या ज़बरदस्त वार्निंग दी आला हज़रत ने कि देखो आला हज़रत के पास वो कलम है जो खंजर खूंखार है। पहला भी शेर इसी तरह का था कि वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू यानी दुश्मन के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हज़रत की सीरत में एक पहलू मिलता है, इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि मैं जो शिद्दत के साथ गुस्ताखान रसूल की जो मैं मजम्मत करता हूँ, इनके खिलाफ लिखता हूँ, इसकी एक वजह यह भी है कि जब मैं इनके खिलाफ लिखता हूँ तो ये मेरे खिलाफ बोलने लग जाते हैं, मुझे गालियां देते हैं, और उतनी देर उनका ध्यान मेरे आका से हट जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए ढाल बनाया है। क्या बात है आला हज़रत की, सुभान अल्लाह। जवाब आपका दुरुस्त है। अगर ये शेर भी कोई तर्ज में सुना खंजर खूंखार बरगबार, किल के रज़ा के खंजर खूंखार बरगबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। क्या बात है, क्या बात है। इंशाअल्लाह फैज़ान रज़ा भी रोज़ाना लूटते रहेंगे, ज़हनी आजमाइश में इल्म दीन भी हासिल करते रहेंगे, मगर अब वक्त हुआ है फ़िक़ही पहेलियों का। Knowledge is love.
चले जनाब, बारी है हमारे आईटी मजलिस वालों की। बताइए किस शख्स को रुकू में तकबीर कहने का हुक्म है? जनाब बड़ा मुश्किल सवाल है। तकबीर तो हाथ उठाना जो है वो क़याम में होता है, ये रुकू में तकबीर कब होती है? जी, जो शख्स नमाज ईद में रुकू में शामिल हुआ। इशारा ले लेते तो अच्छा था, अब बात तो पूरी करे ना। वो क्या करेगा अगर नमाज ईद में रुकू में शामिल होगा? तो तकबीरात रुकू में ही अदा करेगा। और अगर ये पहली रकअत है तो तीनों तकबीरें रुकू में अदा करेगा, दूसरी रकअत है तो फिर तकबीरें अदा नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। मैं समझा ये जवाब बहुत मुश्किल होगा। शायद कई नाजरीन की मालूमात में आज इजाफा होगा। ईद की नमाज है, जी। सवाल का जवाब जो दुरुस्त है वो मैं बता देता हूं कि जो शख्स ईदैन की नमाज में उस वक्त शामिल हुआ जबकि इमाम रुकू में है और वो हालत क़ियाम में तकबीरात ज़वाइद कहकर इमाम को रुकू में नहीं पा सकता, तो उसको, उस शख्स को बगैर हाथ उठाए रुकू में तकबीर कहने का हुक्म है। और ये पहली रकात में ही के लिए ही हुक्म है, दूसरी रकात के लिए हुक्म ठीक है। अगर पहली रकात के रुकू में भी नहीं पढ़ सका तो अब दूसरी रकात में भी नहीं पढ़ेगा। लेकिन जवाब इन्होंने गालिबन दुरुस्त दे दिया है, जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। लेकिन वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 4 के 4 नंबर हासिल कर लिए, एक गलती नहीं की है। बारी है हमारे नातख्वां इस्लामी भाइयों की। पता नहीं कौन कौन से वजीफे पढ़ रहे होंगे। बताइए वो कौन सी चोरी है जो लाखों रुपए का माल चुरा ले मगर शरीयत हाथ काटने का हुक्म नहीं देगी? बड़ा जबरदस्त सवाल है कि चोरी भी होगी और हाथ काटने का हुक्म नहीं दिया जाएगा, हालांकि लाखों रुपए का माल चुरा ले। चाहे तो इशारा ले लें, चाहे तो लाखों रुपए का माल चुराने पर भी शरीयत हाथ नहीं काटने का हुक्म देगी। जी, इशारा। अल्लाह, इशारा ले रहे हैं। ये किसी वक्फ की इमलाक की चोरी है। वो कौन सा वक्फ का माल है? माले वक्फ का मामला है। माले वक्फ तो मैंने इशारा दिया है, कुछ और आगे बताना होगा। ये वक्फ की कौन सी जगह है कि जिसका माल अगर कोई चोरी कर ले? मस्जिद। जी जनाब, मस्जिद का माल अगरचे लाखों रुपए का चुरा ले, शरीयत हाथ काटने का हुक्म नहीं देगी। जैसा कि मलफूजात आला हजरत में है कि मस्जिद की कोई शय लाख रुपए की चुरा ले, शरीयत हाथ ना काटेगी, लेकिन उसे कोड़ों की सज़ा का हुक्म है। लेकिन यहाँ कोई ये सिलसिला देख कर ये ना समझे कि चलो जनाब मस्जिद का माल चुराना है। अरे अल्लाह के बंदो, सोचो, बंदे का माल चुराते हो, उसकी तो बंदा हिफाजत करता है, लेकिन जो वक्फ की अमलाक के पैसे चुराता है, मस्जिद की रकम चुराते हैं, किस कदर बुरा फेल है। अल्लाह का घर है मस्जिद। बदकिस्मती से लोग जो है मस्जिदों में भी चोरी करते हैं। माले वक्फ मिसले माले यतीम है। बिल्कुल इसके बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। लेकिन चूंकि ये फ़िक़ही पहेली थी, इशारा लेकर इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया, लेकिन इन्हें 2 नंबर दिए जाएंगे। फ़िक़ही पहेलियों ने मामला कुछ टर्न किया है। चलना होगा मैं स्कोर बोर्ड की तरफ। हमारा स्कोर बोर्ड हमें बताएगा कि मुकाबला कहाँ पहुँचा है। जी, 14 नंबर हैं आईटी वालों के। कोई गलती अब तक नहीं की है आईटी वालों ने। एक आधा सवाल देने की वजह से नातख्वां इस्लामी भाई 12 नंबर पर हैं। अब सफर करना है मगर अकेले। आइए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब देखना यह है क्वार्टर फाइनल में कौन जाता है और आज हमसे मदनी चेक लेके घर कौन जाता है। 6 नंबर हैं, 6 सवालात हैं। ये आखिरी सेगमेंट है, कोशिश कीजिए कि गलती ना हो। जनाब दिखाइए 6 नंबर और बारी है आईटी वालों की। कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 3 नंबर। बताइए 3 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है?
जो शख्स सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ता है तो वो अपने ऊपर रहमत के कितने दरवाजे खोल लेता है? मशवरा कोई नहीं देंगे, सब खामोश रहेंगे। कुफ्ल मदीना इंशाअल्लाह। अकेले जवाब देना है और सही देना है। 70 दरवाजे। अगर आप कहते 70,000 दरवाजे तो ये गलत होता। 70 दरवाजे जवाब दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। चले भाई हम भी मिलकर पढ़ लेते। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नाज़रीन पढ़ते जाइए, रहमतों के दर खोलते जाइए। अब बारी है नात ख्वां इस्लामी भाई की। सांस अटकी हुई होगी, बताइए कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 6 नंबर। 6 नंबर। बड़ा प्यारा सवाल। मर्दों, लड़कों, औरतों, आजाद किए हुए गुलामों में और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन थे? 4 हस्तियों के नाम बताने हैं। मर्दों में? जी, पहले मर्दों में बता दें। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह। ठीक है, अब बताइए औरतों में। खदीजतुल कुबरा। माशाअल्लाह। अब बताइए गुलामों में, आजाद किए हुए गुलामों में। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह। ठीक है, और लड़कों में? हज़रत अली रज़ी अल्लाह। हज़रत बिलाल वाला आपका जवाब ठीक नहीं है। गुलामों में बताइए, आजाद किए हुए गुलामों में। सेकंड्स जी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक गलती हुई है, 1.5 नंबर हमारे पास है नहीं, हम आपको 1 ही नंबर दे सकेंगे। चलें जनाब, IT वालों की बारी है। नंबर पसंद कीजिए। नंबर 4। नंबर 4। बताइए 4 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? हजरत इमाम मेहदी किसकी औलाद से होंगे? मुश्किल सवाल आ गया है। अब सिर्फ मशवरा किसी से नहीं करना, निगाहें झुका लीजिए और खुद ही जवाब दीजिए। सैयदना इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसकी औलाद से होंगे? अल्लाह अल्लाह, वक्त गुजरता जा रहा है। कोई यहां भी प्लीज देखें, आप सब खामोश रहें और आप इधर उधर भी ना देखें जी। टाइम खत्म हो गया। हजरत देखें, ये भी नाजरीन के लिए आज नया सवाल है। कोई है जो यहां जवाब दे? अरे इतने सारे हाथ उठ गए, लगता है सबको काफिले में जाना है। चले देखें कौन जवाब देता है। क्या तोहफा देंगे भाई? इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरेली से मदीना रिसाला और अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान तोहफे में। माशाअल्लाह। चलें भाई, जाइए जरा आप देखें जी। हाथ उठाइएगा। ये बिले के मामे वाले इस्लाम है भाई। चलें भाई, आगे आइए, थोड़ा आगे आइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसनी से होंगे जी? हसनी नहीं, वो हस्ती बताएं कि वो किन की औलाद में से होंगे। हजरत इमाम हसनी से होंगे यानी। नहीं, जवाब आपका इस तरह दुरुस्त नहीं है। वो हस्ती का नाम आपने बताना है। आप जल्दी से जी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह। नहीं, ये जवाब नहीं है। किसकी औलाद से होंगे? जो बैठे इस्लाम में, आप आगे। एक जहद से तो शायद ये जवाब दुरुस्त हो, लेकिन जो मेरे पास लिखा है वो कुछ अलग है। बी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला। ये किसकी औलाद से होंगे? फातिमातुज़ ज़हरा। जी, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद से होंगे। जवाब दुरुस्त है। मेरा ख्याल है इनको तोहफा एक और भी दें, ये खातून जन्नत किताब भी इनको दे दें। बीबी फातिमा के सीरत पर किताब है माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन को दिखाएं भी ये प्यारी सी किताब, और हमारे नाजरीन भी इस किताब को हासिल करें। कितनी प्यारी प्यारी बातें इस किताब में मौजूद हैं। खातून जन्नत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद से इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शान खातून जन्नत हासिल कीजिए जल्दी जल्दी मकतबतुल मदीना से। दीजिए भाई, माशाअल्लाह। चलें, जवाब तो इन्होंने गलत दे दिया, यहाँ इस्लाम भाई ने सही दे दिया है। अब अगर नात ख्वां इस्लाम भाई जवाब सही देते हैं तो मुकाबला फिर करीब आ जाएगा। सिर्फ 3 सवाल बाकी हैं, फैसला करेगा कौन जा रहा है क्वार्टर फाइनल में। दिखाइए नंबर्स, दिखाइए 1, 2 और 5। नंबर 5। नंबर 5
बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया जनाब। अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह शरीफ को जमीन से कितने साल पहले पैदा फरमाया? बैतुल्लाह शरीफ जमीन से कितने साल पहले पैदा हुआ? जमीन भी ना बनी थी मगर बैतुल्लाह शरीफ बन चुका था। लगता है हमारे नात ख्वां इस्लामी भाई को यह जवाब नहीं आता। कुछ तो बोल दीजिए। 4000 साल पहले तकरीबन। आपने डबल कर दिया। 2000 साल पहले बैतुल्लाह शरीफ को ज़मीन से पहले पैदा फरमाया। गलती हो गई है और शायद मेरा ख्याल है कि मुकाबले का फैसला हो गया है, लेकिन अभी एक एक सवाल बाकी है। चलें जनाब, आईटी मजलिस के इस्लामी भाई से सवाल है, नंबर पसंद कीजिए, 1 या 2? 2 होना आपने एक है आज, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं 2। बताइए 2 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? जिसमें इंसानी में वो कौन सा टुकड़ा है जो अगर दुरुस्त हो जाए तो तमाम जिस्म सही रहेगा, अगर वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा? हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक जिस्म इंसानी में वो लोथड़ा दिल है, अगर वो दुरुस्त हो तो तमाम जिस्म दुरुस्त रहता है, अगर वो दुरुस्त ना हो तो तमाम जिस्म दुरुस्त नहीं रहता। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह। हमारे असद भाई अब जो नंबर बाकी है वही सवाल कर लीजिए। 1। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के असातिज़ा किराम में से 2 के नाम बताएं। आला हजरत के असातिज़ा। एक आपके वालिद मोहतरम जी मौलाना नकी अली खान अल रहमा। एक और बताइए। एक आपके पीरो मुर्शिद। आप नाम नहीं बताते, खाली वालिद बोलते हैं। अब दादा नाम बताए ना। हजरत शाह आले रसूल और हजरत मौलाना नकी अली खान। मेरा ख्याल है 1 नंबर आपको जाते जाते फिर भी हम दे देते हैं। इस वक्त जो आपके दिल की कैफियत है, अगर मैं एक शेर में पूछूं तो वो शेर आप तर्ज में सुना दीजिए। जाते जाते अपने दिल का हाल हमें बताते जाइए। कौन सा शेर सुनाते हैं आप? इस वक्त जो आपका दिल कह रहा है, अपनी तर्जुमानी एक शेर में कर दीजिए। सूते बजाने वालों मुझे छोड़, सूते बजाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना, सूते बजाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना, मेरी आँख को दिखा दो, मेरी आँख को दिखा दो, शहीदी का सिताना, सूते बजाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना। इस्लामी भाइयों का सफ़र यहाँ तक हमारे साथ सिलसिले में था। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। बड़ा अच्छा इन्होंने मुकाबला किया, मगर कुछ गलतियाँ हुई जिसकी वजह से ये पीछे रह गए। अश्कबार आँखों से हम इन्हें रुखसत करेंगे, फिर इंशाल्लाह किसी सिलसिले में आएंगे। अल्लाह ने चाहा मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे। नात ख्वानों को तो वैसे भी बार बार बुलाया जाता है माशाल्लाह। सारे इस्लाम में मेरे करीब आ जाएँ, चलें इंशाल्लाह। कोशिश बड़ी की, लेकिन ज़ाहिर है कि इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। ये आपको 2600 रुपये का चेक दे रहे हैं। आप चाहे तो अभी मकतबतुल मदीना का बस्ता लगा है, यहाँ से भी ख़रीदारी कर सकते हैं। चाहे तो मकतबतुल मदीना हमारे
باہر موجود ہے, وہاں بھی خریداری کر سکتے ہیں. بڑا رونق بخشی انہوں نے ہمارے سلسلے کو, بات بات پر ہم ان سے اشعار بھی سنتے رہے. آج ہمارے خصوصی اسلامی بھائی بھی ہم سے رخصت ہو گئے, آج ہمارے نعت خواں بھی ہم سے رخصت ہو گئے. واقعی ہمارے سلسلے کی 2 رونقیں تھیں, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آگے چلیں گے سلسلہ لے کر. پہلا کوارٹر فائنل دارالمدینہ اور جامعۃ المدینہ والوں سے ہے. میں کوارٹر فائنل کی ٹیموں کو ایک الارم بجانا چاہتا ہوں. یہ آئی ٹی والے ماشاءاللہ بڑی زبردست تیاری کرتے ہیں, آگے کی ٹیموں کو یہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. لیکن اب 8 ٹیمیں ہمارے درمیان رہ چکی ہیں. تلاش تھی ہمیں جس ٹیم کی, آج ہمیں مل گئی ہے. دارالمدینہ والے معاف کیجیے گا, آئی ٹی والے اب جوائن کر رہے ہیں کوارٹر فائنل کو, اور انشاءاللہ ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. The knowledge is